Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with today's topic list. Today is 13th of October. The first topic is National Master Plan for Multimodal Connectivity. Second, China launches Biodiversity Fund. Third, government announces plastic waste recycling target. Second last, Covaxin for emergency use between the age group of 2 to 8. And the last is a sanctions cloud over India-US ties. So this is an editorial from the Hindu. And just to tell you, today all the topic and the news that I'm covering would be from the Hindu itself. And at the end of the video, there would be some MCQ based questions और ये जो questions होंगे वो current affairs पे होंगे ताकि आने वाले जो prelims examination है उनमें कुछ help हो पाए. So without any further delay, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. And a small announcement that we have launched UPSC CSE Prelims test series for 2022. Those of you who are looking forward for the upcoming prelims examination can practice some 60 high quality tests. For more details, you can refer to the description section of this video where I've provided a link for this initiative, for this basically test series. You can register yourself and avail the benefits. Now starting with the first news, that is National Master Plan for Multimodal Connectivity, something which is important for General Studies Paper 3, inclusive growth and issues arising from it. Right? As we know, multimodal connectivity और जो पीएम गति खास करके जो नई स्कीम है गति शक्ति उसके बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे. So the Prime Minister will launch the National Master Plan for Multimodal Connectivity called PM GatiShakti. This would be done on 13th of October, that is today. और पीएमओ ने ये कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रही है फॉर द पास्ट डिकेड और कुछ उसके अलावे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में आई है दैट इंक्लूड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस. एज वी नो, द प्राइवेट प्लेयर्स, इवन द बिडर्स, ऑल अदर सॉर्ट ऑफ बॉटलनेक्स दैट इज अराइजिंग इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेस है वो काफ़ी स्लो रही है इंडिया में. सो to solve the problem of lack of coordinations between the departmental leading to the multiple agencies digging up for the road, laying cables, pipeline, etc. तो बहुत सारे ऐसे projects हैं जो कि गवर्नमेंट के projects delay हुई है because of the lack of coordination. So this is the time we need to promote efficiency in terms of infrastructure development pan India. For that, we have PM GatiShakti. This will address the past issues through institutionalization of holistic planning for the stakeholders in the major infrastructure project. और PM GatiShakti बहुत ही important landmark initiative है गवर्नमेंट की जो कि इस पूरे तरह के एड्रेस को चेंज करेगी. So this can be also important for general studies paper 4. If you're writing a case studies, आप कई बार इस तरह के एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं. कॉमन विजन्स की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान विल बी डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड इन कॉमन विजन्स. खास करके कुछ ऐसे सेक्टर्स में अगर मास्टर प्लान की बात करें, दे वुड कवर लाइक द मिनिस्ट्रीज और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इंक्लूडिंग कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो अभी ऑनगोइंग है. फॉर एग्जाम्पल भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स, उड़ान इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टेक्सटाइल क्लस्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है. डिफेंस कॉरिडोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, फिशिंग क्लस्टर्स और एग्रीकल्चर जोन. एंड जस्ट टू ऐड इन एग्रीकल्चर जोन्स, गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंक्रीज करने के लिए अलग से फंड भी दिए हैं. एंड फॉर ऑल अदर सेक्टर वी हैव PLI स्कीम ऑल्सो, राइट. सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट PLI. कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और उनमें PLI स्कीम्स एप्लीकेबल है. Now to give you a more detail about PM GatiShakti, तो PM GatiShakti के कुछ 6 ऐसे important pillars हैं जो कि बहुत important होंगे and that would be a benchmark setter in terms of providing the efficiency in the construction. So कौन कौन से ऐसे 6 pillars हैं, we'll see everything one by one.
सो अमंग फर्स्ट इज कम्प्रीहेंसिवनेस. कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब है इट विल इंक्लूड जितने भी एग्जिस्टिंग प्लान इनिशिएटिव्स है जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर काम करिए, इट वुड बी गिवन अ वन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल. तो जो क्लस्टर बनी हुई है उसको एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में लाने की बात की गई है. सो देयर वुड बी नो मोर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ एनी ऑफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मस्ट बी जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बेसिकली डिपार्टमेंट बढ़ती है या फिर लोग बढ़ते हैं, तो वहाँ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लग जाती है. तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल किया गया है ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके बिटवीन द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट. सेकंड, द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल नाउ हैव द विजिबिलिटी ऑफ ईच अदर एक्टिविटीज. जो क्रिटिकल डेटाज होंगे, प्लानिंग रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड, वो कंप्रिहेंसिव तरीके से इस सिंगल पोर्टल में मेंटेन की जाएगी, राइट. So what is this more about? This is more about promoting transparency. At the same time, it will call for efficiency in that particular work. जो दूसरी important pillar है, that is prioritization. किस तरह की prioritization होनी चाहिए? That is different department will able to prioritize their project through the cross sectoral interactions, right? तो और भी जो stakeholder concern होंगे उनको लाया जाएगा, expert opinion ली जाएगी ताकि उस sector में जो priority work है उसको पहले include किया जा सके. थर्ड इज ऑप्टिमाइजेशंस, राइट. इसके लिए नेशनल मास्टर प्लान है विच विल कॉल फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल गैप. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द लूप होल एंड टू वर्क अपॉन दैट विथ अ होलिस्टिक मैनर. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स from one place to another would be by selecting most optimum route in terms of cost and time. जहाँ पे टाइम की भी बचत हो and at the same time some cost should also be saved from the government end. Fourth pillar would be synchronization. यहाँ पे जो coordinations हैं between the implementation agency and the planning agency, both thing would be taken care of, right? तो ये ज़रूरी है अगर कोई एक मिनिस्ट्री ने प्लान किया है और दूसरी मिनिस्ट्री, सपोज मिनिस्ट्री ए इज प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री बी इज इम्प्लीमेंटिंग, तो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पीएम गति शक्ति विल सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ ईच department, different layer of governance in holistic manner, coordinating between each of them. Now the fifth is analytical. यहाँ पे ये plan करेगी that entire data would be placed under the GIS based spatial planning. यहाँ पे एक analytical tool use की जाएगी which would be having 200 plus layers. It will enable the visibility to the executing agencies. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की गई है ताकि GI बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशंस किया जा सके सारे सेक्टर्स के डेवलपमेंट. नाउ द लास्ट वुड बी डायनेमिक. जितने भी मिनिस्ट्रीज होंगे गवर्नमेंट के, all the ministries and the department would now be able to visualize. They would also review, monitor the program of the cross-sectoral project using the GIC platform, right? And the progress of the project would be uploaded on the regular data in the portal. So everything with the aid of technology, efficiency and accountability, promoting transparency would be something very important under the PM Shakti initiatives. Basically PM GatiShakti. Now China launches Biodiversity Fund, something which is important for General Studies paper 2, effect of policies and politics for developed and developing countries. तो चाइना ये डिसाइड किया है, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है $233 मिलियन की एक कॉर्पस बनाने की बात की गई है. ये बायोडाइवर्सिटी फंड होगी एंड दिस वाज डिक्लेयर अंडर द यूएन कंजर्वेशन समिट, राइट. डिस्पाइट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इस इनिशिएटिव पे डिसएग्री किया, but this initiative has come into action. So if it is being asked in examination which of the following countries have enacted the biodiversity fund, the correct answer would be China, right? Apart from UPSC, this type of question tend to be appearing in many other competitive examination. तो आपके लिए ये जरूरी है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे. The summit aims to establish a new code of setting target between 2030 to 2050. So 2030 से लेकर 2020 के बीच में जो एक important target रखी जाएगी, you know, we have PCC Paris climate change, we have COP26 coming up. तो जितने भी targets होंगे environmental related, उस target को chase करने की बात भी इसमें रखी है. Now China, the world biggest polluter, followed by the United States. और ये दो कंट्री जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशंस या जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनमें नंबर 1 और 2 पे हैं. फर्स्ट इज चाइना, सेकंड यूएसए. दे हैव sought to play most prominent role internationally on the biodiversity conservation in the
recent years. एम क्या होगी इस फंड की? द फंड एम्स टू सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शंस इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड टॉक ऑन द न्यू पोस्ट 2020 ग्लोबल पैक्ट टू टैकल द स्पीसीज लॉस. और उसके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है that it will take an estimated 1 trillion years to build the sustainable supply chain and help countries to protect the nature. So we have to understand the gravity and seriousness of this issue, and definitely each and every country has to work in synchronization so that we can save our biodiversity, and at the same time we need to protect it. Now 30 by 30 एजेंडा रखी गई है. व्हाट इज दिस 30 by 30? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 30 by 30 एजेंडा किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना होगा दिस इज रिलेटेड टू अर्थ, लैंड एंड ओशियन प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस. तो एक की प्रपोजल्स रखी गई है रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस 30 by 30. जो एजेंडा है इज टू अफोर्ड 30% ऑफ द अर्थ, लैंड एंड प्रोटेक्ट ओशन बाय 2030. राइट, तो ये टारगेट्स हैं. एज पर यूएन रिपोर्ट जो ग्लोबल स्पेंडिंग है टू प्रोटेक्ट द रीस्टोर द नेचर वो ट्रिपल होगी इन द कमिंग डिकेड्स. अगर अभी के प्रेजेंट की बात करें फॉर 2030 इट एंटिसिपेटेड इज $350 billion. नाउ दिस में ग्रेजुअली इंक्रीज टू $536 billion to meet the target. So you can see this is how and the level of investment that would be required to save and protect our nature. So this is a time to take responsibility. Each of us has to take a call, and at the same time the stakeholders, the NGO, the government, the other people, entity involved in this need to come forward with the proposals and need to execute them. ऑब्जेक्शंस की अगर बात करें, कुछ कंट्रीज ने, जो चाइना ने नई फंड बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा सहमति नहीं दिखाई है. सो सम कंट्रीज सेड दैट the new fund of the conservation is unnecessary. They have used the term unnecessary. And the United Nations Global Environment Facilities के बारे में बात की गई है कि ये ऑलरेडी एक फैसिलिटीज़ है जहाँ पे जो नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस, वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स. सो व्हाट इज अ नीड? So that is another level of debate. We are not getting into that. But whatever that is being done for the welfare of the environment is something that will help in the positive aspects. So we have to appreciate the effort and work toward the sustainability of environment. Now, government announced plastic waste recycle target, something which is important for General Studies paper 3, conservation, environmental pollution, degradation and EIE. So Ministry of Environment की अगर बात करें, they have issued a draft rule to mandate produce the plastic packing material to collect and produced by 2024. तो राइट, जितने भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रही है उनको कलेक्ट करने की भी जिम्मेवारी दी गई है उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर. सो द ड्राफ्ट विल इंश्योर दैट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट टू बी रिसाइकल्ड वुड बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट सप्लाई आल्सो. Extended producer responsibility certificates, this is also known as EPR certificate. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. EPR सर्टिफिकेशंस क्या है? एक जो ड्राफ्ट रूल आई उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है that the makers and the user of plastic packing could collect the certificates called as extended producer responsibility certificate and trade in them. Now end of life disposable की अगर बात करें, एक नई क्लॉजेस लाई गई है जहाँ पे कुछ ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ प्लास्टिक्स होंगे that can only be recycled, right? अगर मल्टी लेयर मल्टी मटेरियल प्लास्टिक्स की अगर बात करें, सो उसकी जो एंड लाइफ अगर नहीं होती है तो उसको कुछ दूसरे पर्पसेस में यूज़ की जानी चाहिए, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल एंड सीमेंट क्लिंक्स. तो कुछ ऐसे मेथडोलॉजी प्रिस्क्राइब्ड है बाय द CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि परमिट करती है इस तरह के डिस्पोजेबल के मेथडोलॉजी को, जो कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ किया जा सके, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल एंड सीमेंट क्लिंक्स. प्लास्टिक पैकिंग कैटेगरीज की अगर बात करें, 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई है. द फर्स्ट इज द रिजिड प्लास्टिक, सेकंड कैटेगरी इज द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, जिसमें आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक प्लास्टिक शीट्स, कवर यूज फॉर द प्लास्टिक शीट्स, कैरिंग बैग्स, प्लास्टिक सैचेज एंड पाउचेज आर द पार्ट ऑफ flexible plastics, right? The 3 categories that is important for you. And the last is called multi-layer plastics packaging. It has at least one layer of plastic and the other layer material is other than the plastic, right? So these are the permitted categories of plastic that will be allowed after the enactment of the rules. Now declarations by the producers. Producer को declarations देनी होगी, एक ऐसी declaration देनी होगी जहाँ पे वो obliged होंगे to declare
to the government that via centralized websites वो बताएंगे how much plastic they are producing annually, and companies has to collect at least 35% of their target and 70% by 2023 and 100% by 2024. तो जितने भी उन्होंने manufactures किए हैं उतने वापस उनको collect भी करने होंगे, right? So these are some of the provisions with regards to the declaration which would be made by the producers to the central government in their centralized websites. Now, Covaxin for emergency use in the age group of 2 to 18, something which is important for general studies paper 2, issues related to development and management of health. भारत बायोटेक ने अभी recently जो कोवैक्सीन बनाई है, this is BBV12, this has been recommended for the emergency use authorizations, EUA के लिए ये अप्रूवल की गई है for the age group of 2 to 18. जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है सिट्सको की, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट की है एंड फाइनली दे हैव गॉट द अप्रूवल. सो कोवैक्सीन इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन इन द कंट्री जो कि डेवलप की गई है भारत बायोटेक, उसके अलावा ICMR और NIV. सो ये तीन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोवैक्सीन उसकी डेवलपमेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो द आंसर वुड बी भारत बायोटेक, ICMR एंड NIV पुणे. So these are the three major institutions that have developed this vaccine, and it has been given the green signal. जो अभी की जो vaccines है खास करके बच्चों के लिए 2 से 18 एज ग्रुप के लिए, that has emerged as the first COVID-19 vaccine globally to be used for the vaccinated for the young children. Right now, just an infograph to tell you more information. Covaxin, first indigenous vaccine developed, has been recommended for the use of minors. ट्रायल ऑलरेडी की गई हैं, फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं. एज ग्रुप जो है 2 to 16, 6 to 12, 2 to 18, ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग हिसाब से डोजेस दी जानी है. रिकमेंडेड डोजेज हैं 2 doses टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन विद इन 28 days gap. Right? So this is how things would work, and we are very optimist in a view that if one vaccine is there, another 2 or more vaccine would be developed for children so that we can vaccinate children as fast as possible. डेटा सबमिट की गई थी, भारत बायोटेक ने अपनी जो डेटा है सिट्सको को दी हैं, और जो पॉसिबल रिकमेंडेशंस है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अप्रूव करने के लिए भी सबमिट किए हुए. एंड द रिप्रेजेंट ऑफ द फर्स्ट अप्रूवल वर्ल्ड वाइड वुड बी फर्स्ट वैक्सीन फॉर 12 to 18 एज ग्रुप, एंड द एक्सपर्ट कमेटी हैव मेंटेन 2 doses, जैसे मैंने आपको बताया 2 doses होंगी, एंड द डिफरेंस वुड बी 2 to 18. फॉर अडल्ट्स इट वुड बी 4 to 6 weeks बिटवीन द 2 shots. Sanctions could over India and US ties, खास करके ऐसे सैंक्शंस जिनमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे क्या फ्यूचर रोड मैप होगी उसके बारे में बातें हैं, और खास करके रशिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उसके बारे में पूछेगा. So something which is important for general studies paper 2, effect of policies of developed and developed countries in India's interest. तो पूरे एडिटोरियल में जो थीम है that is countering America adverse through sanctions act, इसको एक्ट भी कहते हैं. I'll be discussing 4 important subheads under this editorial. First is enactment of cuts, decrease in import, India-US deal and conclusion. तो कुछ 4 important subheads के अंदर मैं आपको पूरी editorial समझाने की कोशिश करूँगा. And you have to take a note that this is something which is very important for your mains, right? If you're appearing this year mains, make sure you have ample points with this topic. तो डिलीवरी की अगर बात करें S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमें रशिया से मिली है, इट इज़ बीइंग शेड्यूल्ड दैट ये अपने टाइम के हिसाब से इंडिया को रिसीव होगी, और जो इश्यूज है रिगार्डिंग द मिसाइल सिस्टम दैट कुड अट्रैक्ट इंडिया अंडर द सैंक्शंस. कौन से सैंक्शंस हैं जो कि यूएस कांग्रेस ने इनैक्ट किए थे ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट. हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दिस इशू प्रीवियसली ऑल्सो बट इट्स टू लॉन्ग. तो यहाँ पे कुछ फ्रेश तरीके से जो नई चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं. So India is scheduled to receive 5 squadron of surface to air missile system, जो पूरी कॉस्टिंग है इन इंडियन रुपीज़ वुड बी 40,000 करोड़ रुपीज़, और ये जो एग्रीमेंट साइन की गई थी वो 3 साल पहले की गई थी बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इनैक्टमेंट ऑफ कट्स की अगर बात करें 2017 में जब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो S-400 ट्रायम्फ लेंगे रशिया के साथ, तो यूएस की फेडरल लॉ ने एक इम्पोजिशन लाई दैट वुड बी फॉर 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया.
तो इस लॉ के जो काटसा की जो रूल्स है वो ये कहती है अगर किसी कंट्रीज ने इन तीनों कंट्रीज के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शंस की है इंटेलिजेंस सेक्टर्स पे या फिर डिफेंस सेक्टर्स पे, तो यूएस उस कंट्री को सैंक्शंस करेगा, राइट। एंड द अल्टीमेट गोल वाज टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्लोइंग टू द रशियन गवर्नमेंट। सो द एक्सपर्ट सेज ये सबसे बड़ी एम थी इस रूल की, इस लॉ की जो फेडरल कांग्रेस ने पास की थी कि रशिया के पास कम से कम पैसे पहुंचे डिफेंस डील। So the missile system were originally scheduled to be delivered between 20 to 2023 and supplies are expected to commence now. और ये push करेगी towards traditional military hardware supply to Russia. Although we have a very good relationship with Russia in terms of defense equipment and Russia is our trusted partner. Both India और US की अगर बात करें, they have been close conversation with the deal. रशिया और इंडिया ने जिस तरह से ये डील को साइन किए, वहाँ से यूएस ने भी एक एप्रीहेंशन जाहिर की कि इट शुड नॉट बी प्रोसीडिंग फर्दर। तो इंडिया हैज़ स्ट्रेट ऑन द टैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि बहुत ही कंक्लूसिव है इंडियन सब कंटिनेंट के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, इंडिया की ज़रूरतें को अगर देखा जाए। सो दिस वुड बी अ ग्रेट अपग्रेडेशन फॉर इंडियन डिफेंस सिस्टम। और सैंक्शंस की अगर बात की जाए, ट्रेमेंडस पोटेंशियल है सैंक्शंस में, जो कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री होगी बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड दिस वुड डिसाइड द रोड मैप। और सबसे प्लस पॉइंट इंडिया के पास ये है कि ये जब साइन हुई थी उस समय किसी और की गवर्नमेंट थी, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। नाउ द बिडेन गवर्नमेंट हैज़ टू सी हाउ दे वुड फंक्शंस, राइट। हमें ये चेक करना होगा कि अभी जो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप है उस कंटेक्स्ट में काटसा की कितनी रेलेवेंस रहती है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, डिक्रीज इन इंपोर्ट की अगर बात करें, ओवर द लास्ट डिकेड इंडिया की जो मिलिट्री परचेज है रशिया के साथ वो काफ़ी हद तक गिरी है। दे हैव बीन डिक्लाइन इन द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड रशिया, और इंडिया import of arms had decreased by 33%. So this data is important. अगर आपसे पूछा जाए मेंस में कितनी परसेंट डिक्रीज अगर आपको कोट करना है, जस्ट राइट 33% is a decrease, right, between 2011-15 to 16-20. और रशिया was most affected supplier according to the Stockholm think tank SIPRI. SIPRI ने रिपोर्ट किया कि रशिया को इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। In the recent year there have been some big tickets deal between $15 billion including S-400 Triumph defense system, K-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि हमने रशिया से परचेज की है, ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 असॉल्ट राइफल जिसकी प्लांट उत्तर प्रदेश में लगनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हैं रशिया के साथ बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और यूएस ट्रेड की बात करें तो पिछले कुछ डिकेज में जिस तरह से यूएस ने डाइवर्ट किया इंडिया को रशिया के बाद अपने तरफ, तो उसके साथ उनकी भी ट्रांजेक्शन्स बढ़ी है। इट हैज़ टच टू $20 बिलियन और आने वाले समय में कुछ नेगोशिएशन $10 बिलियन तक पेंडिंग है। तो एक ह्यूज अमाउंट की ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में भी हो रही है, और यूएस चाहती है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा रशिया के साथ ट्रेड ना करे, बट we have established partner and definitely India would not leave that partner. So US designated that India की जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप रही है 2006 तक उसको कंटिन्यू किया जा सके, और इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 है विच विल गिव एक्सेस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। सो वी रिक्वायर बोथ कंट्रीज एट द सेम टाइम। जहाँ पे हमें यूएस की ज़रूरत है वहाँ पे हमें रशिया की भी उतनी ही ज़रूरत है, एंड नो कंट्री कैन रिप्लेस ईच अदर, राइट। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। अगर आपने कंक्लूड करना है इस आंसर को तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ कंट्रीज हैव देयर पोटेंशियल एंड इंडिया बीइंग फ्रेंड रिलेशनशिप विद बोथ द कंट्रीज वी कैन नॉट रिप्लेस एनीवन, दे आर द ईदर साइड ऑफ टू कॉइन, राइट। So today's manufacturing has both countries are exploring the co-developed, co-produced and military equipments. कंक्लूजन की बात करें, कुछ 3 क्लियर स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, अगर काटसा की बात करें तो किस तरह से आगे बढ़ जा सकते हैं विद इंडिया एंड यूएसए। सो द फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन ऑन द वेवर। ये ज़रूरी है कि अभी के जो करंट प्रेसिडेंटशिप है वो इस एग्रीमेंट, इस जो लॉज को पास की गई थी 2017 में जो काटसा के लॉज में वेव ऑफ दिया जाए। सेकेंड इज द रेफरेंस टू कंजेशन कमिटीज एंड द लास्ट एंड थर्ड इज द क्लियरेंस बाय दिस पैनल्स। तो काटसा की जो टेस्ट है इट विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दिस कैन बी अ डील ब्रेकर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये बहुत ही अहम पहलू है, क्रिटिकल पॉइंट है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्दो वी हैव अ गुड एंड एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद Russia. So with Biden administration sailed through the position, his party allow India a clear precedent, and we are optimist that कि जो भी डिसीजन होगी वो इंडिया के फेवर में होगी, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाने की बात नहीं की जाएगी। So this is how you can conclude your answers. Now moving ahead with the MCQ questions of the day.
Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is C. For the second question, the correct option is B. Now MCQs for today. Quadrilateral security dialogue. आपको इसके statements बताने हैं. Informal strategic dialogue between India, US, Japan, and Australia. It aims to support free, open, prosperous Indo-Pacific region. So if you know the correct answer, do let me know in the comment section down below. आप प्रैक्टिस करें. अभी से क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको रियल एग्जामिनेशंस में भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होगी. सेकेंड, सांबर लेक के बारे में आपको बताना. दिस इज अ काइंड ऑफ कंटेम्पररी प्लस ज्योग्राफी क्वेश्चन. दिस इज अ largest inland salt lake in the world and it represents depression of the Aravalli ranges. So which among the following is the correct options? You can let me know in the comment section down below. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concerns, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.